So let's start. This is our lecture number 3 on kinematics in one dimension. So lecture number 1 और lecture number 2 में हम लोगों ने देखा था motion, types of motion, frame of references, how the time is important and the frame of reference is important to understand the motion. Then we have seen the parameters of motion. We have seen distance, displacement. We have seen velocity, speeds, and then we have seen why the average thing cannot justify the motion properly. तो हम लोगों ने फिर we switch it on to the instantaneous. Instantaneous में हम लोगों ने देखा था how the tangent at any point gives us the instantaneous velocity of that particular curve. So that we have seen. After that, we have switched it on to the acceleration. We have seen another parameter. Acceleration is nothing but which is the push that is going towards the motion or against the motion if we are considering one-dimensional motion. Then after that, we have seen motion in one-dimensional. Motion in one dimension में हम लोगों ने कुछ एक illustrations देखी थी to get a theoretical understanding of motion in one dimension. फिर उसके बाद हम लोगों ने we have seen the kinematic equations in 1D. So with those kinematic equations, we further enhance our understanding with certain illustrations. कुछ illustrations फिर देखी थी हमने. And we wrap it up the lecture number 2 with that. Now the lecture number 3 हम लोग पढ़ेंगे इसमें motion under gravity. Motion under gravity same is the extension of motion in straight line, motion in 1D. But here we are going to consider the vertical direction, like here. So ball is going up, resting and coming back, like that. So हमने अपने ऐसे ही already questions देखे हुए हैं. यहाँ पे velocity से move कर रहा है, acceleration is direction में, तो it will go up to this point, stop and coming back. So same way यहाँ पे if the ball I am going to throw the ball up, it will go up, it will stop for a while and it is going to come back. So this motion we are going to do. It is 1D motion only we are going to study now in motion under the gravity. So our assumption will be कि air resistance 0 होगा in all our problem solving. So air resistance को 0 मान के हम लोग question solve करेंगे. But हम लोग ये भी देखेंगे एक intuition लेंगे कि अगर air resistance है भी available तो उसका क्या impact पड़ता है हमारे motion पे, ठीक है. This we are going to see in the second one. Third one में हम लोग देखेंगे motion along the inclined plane. कि if we release a ball or if we release any object on the inclined plane तो उसका motion किस तरीके से होगा, उसका time period क्या होगा, उसका motion उसका we'll see from the kinematic equations कि how the parameters are changing in the inclined plane and what is this greatest slope and why if we drop a ball, so any ball will take only the greatest slope rather than any other slope, why this is happening. और अगर आपको किसी और slope पे move करा रहा है then what you have to do, और अगर किसी और स्लोप पे मूव कराना है तो व्हाट इज द मोशन ऑफ दैट स्लोप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर नंबर 3. और कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे विच इज गोइंग टू एनहांस हर theoretical understanding on motion under the gravity. Okay, so let's begin. So as we have seen, motion under the gravity is 1D. So it is also called a free fall motion. Free fall का मतलब ये नहीं है कि body is just falling down. So it can be body can go up, body can be released just, or body can go up with certain velocity, body can be released with zero velocity, or body can be thrown down with some velocity. So all the ये तीनों केसेस में ऊपर से नीचे आ रही है या जस्ट नीचे आ रही है या फिर I am throwing it with some, I'm releasing it with, I'm throwing it with some velocity, or I'm just releasing it with some, I'm just dropping it. So all this motions is telling you the free fall only. So motion under the gravity is just we call a free fall motion. So it is not like a free fall का मतलब बस falling down है, ठीक है. It can go up, it can go down and it can be dropped also. All the motion under the gravity we are considering. Okay, so now is another assumption we are going to take is the gravity is nothing but is the gravitational force. Earth है, this is Earth. If you throw something, so we know there's a gravitational force which is called Fg that we have seen in the basic lecture of physics. Fg is your depending on m1 m2, this is gravitational constant divided by r square. So जिस तरीके जैसे ये r इंक्रीज होता रहेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी. बट ये जैसे मैं बॉल ऊपर फेंकता जाऊंगा तो ये r डिस्टेंस दिस r इज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो r इंक्रीज होगा, ये वाला r, दिस r इज गोइंग टू इंक्रीज, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड. बट उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता जब तक वो हाइट काफ़ी, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए. सो ग्रेविटी इज़ नथिंग बट के दोनों के मास की वजह से हाउ मच द अर्थ इज पुलिंग डाउन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर, दैट इज व्हाट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो यहाँ पे हम देखेंगे वी टेक दिस एजम्पशन के एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. हम कहीं से भी फेंक रहे हैं
यहाँ से फेंक रहे हैं, सो इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो 1D हम लोग ले रहे हैं, तो इट विल गो अप एंड डाउन ओनली, सो इट विल ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ओनली, दिस साइड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। So it is always vertically downwards or near the earth surface we consider it 9.8। as we know कि जैसे जैसे हम surface के ऊपर जाते जाते हैं velocity gravity force of gravity decrease होती रहती है, but in this case we consider it, we are doing all our analysis के earth के just ऊपर, just surface के ऊपर, which is where h is very much less than the radius of the earth, so we can consider कि gravity is almost constant in that area। सो अर्थ सरफेस पे वी कंसिडर इट एज ए कॉन्स्टेंट। और वैसे भी जो ग्रेविटी है दैट डिक्रीजेस, अगर मैं 1000 मीटर ऊपर जाता हूँ तब वो ग्रेविटी डिक्रीज़ करती है ऑलमोस्ट 0.03%, ठीक है, इस स्पेस से डिक्रीज़ करती है। तो हमारे मोस्ट ऑफ आवर एनालिसिस विल बी लेस देन दिस, सो दैट्स वाई वी कंसिडर ग्रेविटी एज अ कॉन्स्टेंट 9.8। और कन्वीनियंस के लिए वी कंसिडर इट समटाइम्स 10 ऑल्सो एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। और मोशन को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव 1D जब भी होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द वेक्टर वी कैन सॉल्व इट थ्रू द स्केलर्स। स्केलर से सॉल्व करने का क्या तरीका है हमारा, वी कंसिडर वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, अनदर डायरेक्शन इज नेगेटिव। सो इन दिस केस दिस वी हैव कंसिडर पॉजिटिव एंड दिस वी हैव कंसिडर नेगेटिव, नीचे वाली नेगेटिव ले ली। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी माइनस जी। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, सो इट विल बी माइनस जी। तो मेरी जो काइनेमेटिक इक्वेशन होंगी वो क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू यू, ए की जगह मैंने माइनस जी डाल दिया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। ये मेरी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन चेंज हो गई एज पर माई साइन कंसिडरेशन ऑफ जी। ओके, नाउ वी विल डू सम एनालिसिस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। सो मैंने यहाँ से we consider one more assumption is the air resistance is 0, ठीक है, air resistance 0 and all the motion is near the earth surface, these two assumptions that we are going to take। so suppose यहाँ से मैंने बॉल फेंकी, it is at a initial velocity u से मैंने बॉल फेंकी यहाँ पे, ठीक है। so यहाँ पे बॉल गई बिकॉज आई नो कि पुश इसको नीचे की साइड मिल रहा है। वी हैव सीन के पुश अगर एंटी मोशन हो, मोशन के अगेंस्ट साइड में हो, तो क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे, बॉडी की स्पीड ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। यहाँ पे यू है, यहाँ पे सपोज यू है, फिर धीरे धीरे इट गॉट डिक्रीज एंड इट गॉट 0 एंड देन स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द अपोजिट साइड, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर व्हेन वी वर स्टडीइंग मोशन इन अ वन डायमेंशन। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी होगा, बिकॉज वी आर हैविंग द पुश फ्रॉम द जस्ट अ सेकेंड, yes, so we are having the push, continuous push from the top on the ball, so ball is going up and up, this is my v and there's a push downward, so क्या होगा, velocity धीरे धीरे decrease करेगी, एक point पे जाएगी, वहाँ पे velocity 0 हो जाएगी, at this point velocity will get 0, फिर यहाँ पे still there is an acceleration downward, तो यहाँ से फिर the velocity will start picking up speed and it will come back with the same velocity, not the same velocity, with the same magnitude of velocity, but the direction got changed, because यहाँ पे जो direction थी this is this one, यहाँ पे जो direction होगी it will be this one, but the magnitude of velocity will be the same, direction will get changed। okay, so if we say velocity is not same here but magnitude of velocity is same। okay, so there is a symmetry in the motion कि जितना मैं जिस भी पॉइंट पे अगर मैं चेक करूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो मेरी ऊपर जाने की वेलोसिटी होगी u, सपोज यहाँ पे u है, तो इस पॉइंट पे दिस इज माय v इफ आई टेक, सो सेम पॉइंट पे अगर मैं जब नीचे आ रहा हूँ तो दिस वेलोसिटी विल ऑल्सो बी v बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, मैग्नीट्यूड विल बी द सेम बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अनदर सिमेट्री होती है इसमें कि जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ तो ये जिस पॉइंट पे जाके स्टॉप होता है उसका टाइम पीरियड, और जहाँ से स्टॉप होके फिर दोबारा उसी पॉइंट पे जहाँ से फेंका गया वहाँ पे आने पे उसका टाइम पीरियड t2, तो ये दोनों टाइम पीरियड इज सेम, t1 इज इक्वल्स टू t2 कंसिडरिंग माई एयर रेजिस्टेंस इज 0, देन द सिमेट्री इज देयर इन द टाइम पीरियड, ऊपर जाने में नीचे आने में दोनों में सेम सिमेट्री रहती है। देयर इज अ सिमेट्री इन मोशन, सेम वेलोसिटी अप एंड डाउन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे डायरेक्शन अप होगी, यहाँ पे डायरेक्शन डाउन होगी, तो आई कैन नॉट से वेलोसिटी इज सेम, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। ओके, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी and the time period to go up to v is equal to 0 and the time period to come down that is also same। so total time period in my flight, तो ऊपर से नीचे आने में if I say the total time period it is 2 times t is my total time period। okay, so time to go up is equal to time to come down। so अगर मैं यहाँ पे देख लूँ टाइम पीरियड अगर मेरे को निकालना है u और t की टर्म्स में, so if v is equal to u minus gt, v मेरा कितना है 0 फाइनल यहाँ पे, ठीक है, here I got the t is equal to u by g, or 2u by g is my time period in time period of the motion from going up to the down। okay, 2u by g
एक साइड का u/g हो गया, दो साइड का 2u/g, ठीक है। फ्री फॉल एज वी हैव सीन इट इज़ द अपवर्ड मोशन ऑल्सो टाइम वन मोशन, ये पूरा मोशन फ्री फॉल है क्योंकि पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर स्टॉप भी हुआ एक पॉइंट पे, सो दिस होल मोशन इज़ द फ्री फॉल मोशन। एंड अनदर थिंग इज के एक सेम हाइट पे सपोज आई टेक दिस हाइट, सो इस हाइट पे बॉल विल बी एट 2 टाइम्स, एक टाइम पे जब ऊपर जा रही होगी यहाँ पे, सो ऊपर जाते जाते एक टाइम t1 पे यहाँ पे बॉल होगी और सेम ऊपर जाके फिर यहाँ पे t2 पे भी सेम हाइट पे बॉल होगी, ठीक है। सेम हाइट पे बॉल होगी ऊपर जाते टाइम नीचे आते टाइम, ठीक है। ये ऊपर जा रही है बॉल, ये नीचे आ रही है, बट दोनों साइड इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, यहाँ पे भी v होगा यहाँ पे भी v होगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, सो हियर इट इज सेम हाइट पे वी हैव t1 वाइल गोइंग अपवर्ड, t1 वाइल गोइंग डाउनवर्ड, बट एट द सेम हाइट उन दोनों की वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। नाउ इफ अनदर एक और चीज़ देखते हैं इसमें, अगर मैं बॉल को यहाँ पे बॉल को ऊपर से जस्ट ड्रॉप कर देता हूँ तो u इज़ माई जीरो, इट विल कम डाउन, सो यहाँ पे जब ये हिट करेगा व्हाट विल बी इस वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2g h, if I consider this as a positive direction, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ये जीरो हो गया, यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी यहाँ पे जो डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रही है वो वेलोसिटी आ गई √2gh, ठीक है। √2gh इज माई वेलोसिटी हियर, और मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, व्हाट इज माई टाइम पीरियड इन कमिंग डाउन, तो टाइम पीरियड कैसे होगा, टाइम पीरियड विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर मैं लूँगा, तो यहाँ से मेरा दिस विल बी ज़ीरो, दिस हाइट विल बी h 2h/g मैंने ले लिया, तो दिस इज t जो मेरा यहाँ से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ किसी भी बॉल को, इफ़ आई एम ड्रॉपिंग एनी बॉल, तो यहाँ पे आने में उसकी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड इट विल बी रीचिंग, सो वेलोसिटी मेरी आ गई यहाँ पे √2gh, अगर मैं बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, एंड द टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड में आ रहा है यहाँ पे 2√2h/g, सो दीज टू थिंग्स आर देयर, √2h/g is the time period and √2gh is the velocity when I'm dropping a ball from here and it is coming up here, so here this point पे कितना टाइम पीरियड आने में लगा √2h/g और कितना मेरा वेलोसिटी हुई यहाँ पे √2gh। अब इन दोनों चीज़ों में आई डोंट हैव द मास इन दिस, √2gh/g √2gh, आई डोंट हैव द मास इन दिस, सो अगर मास नहीं है तो इवन इफ आई ड्रॉप 10 kg बॉल और 1 ग्राम बॉल बोथ विल रीच एट द सेम टाइम पीरियड √2h/g। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इन रियल सिनारियो एयर रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से द मास विल कम इन टू द पिक्चर, सो दैट्स वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू विजुलाइज इन द रियल सिचुएशन। बट अगर हमारा एयर रेजिस्टेंस जीरो है तो वी विल सी के 10 ग्राम मास के लिए भी 1 ग्राम मास के लिए इट विल सेम टाइम √2h/g से वो इतने टाइम पीरियड में नीचे गिर जाएगा, ठीक है, इफ़ यू जस्ट ड्रॉप द बॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट h, ओके। और यहाँ पे वेलोसिटी जो इसकी बॉटम पे होगी, चाहे वो फेदर लूँ मैं, चाहे मैं 10 kg की बॉल लूँ, इट विल बी ऑफ √2gh, दिस विल बी द वेलोसिटी, ओके फाइन। सो दिस इज a part of our analysis in motion in 1D in vertical, so we'll see कि एयर रेजिस्टेंस हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस अगर अवेलेबल नहीं था तो वी हैव डन अ बिट ऑफ एनालिसिस, नाउ अगर देखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस हो जाए तो मैं एयर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज अपोज द मोशन, किसी भी डायरेक्शन में मोशन होगा उसको अपोज करेगा, ठीक है, बट ग्रेविटी विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ये एक बेसिक डिफरेंस है। सो सपोज मेरी बॉल ऊपर जा रही है तो यहाँ पे मोशन कितना है, मोशन क्या है मेरा, दिस इज अपवर्ड मोशन है, तो यहाँ पे मेरा एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड और जी भी डाउनवर्ड, सो टोटल मेरा कितना इसको अपोज मिलेगा, पुश मिलेगा a+g, सपोज मेरा g 10 है और a मेरा 2 है तो इट विल बी 12, ओके, इट विल बी 12, सो मेरे को 12 नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है, ठीक है, 12 का मेरे को पुश मिल रहा है, और मेरी अगर इनिशियल वेलोसिटी पहले विदाउट एयर रेजिस्टेंस मेरी इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, ठीक है, यूज़ माई 10, अगर मेरा एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो ये 10 पूरी ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम लगता अगर मेरा केवल g होता। अब नाउ ये मेरी वेलोसिटी 10 है, इसको ज़ीरो होने में अगर मेरा g+a है तो इसको कम टाइम लगेगा, लेस टाइम, दिस टाइम विल बी लेस टाइम, इसको जीरो, बिकॉज माई फॉर्मूला इज v इक्वल टू u माइनस gt, यहाँ पे अगर मेरा v फाइनल ज़ीरो है तो दैट इज़ u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t इज़ इक्वल टू u/g, g जितना बड़ा होगा उतना मेरा टाइम छोटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है g+a है और फर्स्ट केस में केवल g है तो मेरा टाइम उतना छोटा हो जाएगा, सो इस केस में ऊपर जाने में मेरा टाइम कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा इफेक्टिवली जो g आ रहा है वो g+a आ रहा है, ठीक है, इफेक्टिव g+a आ रहा है। अब नीचे आने में देखते हैं, नीचे आने में हमारा मोशन ये है और मैंने क्या बोला, जब मोशन को ही अपोज करेगा बस एयर रेजिस्टेंस,
मोशन मेरा इस डायरेक्शन में, एयर रेजिस्टेंस विल बी हेयर बट ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड ओनली, ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड ओनली. सो यहाँ पे इस केस में इफेक्टिव मोशन क्या होगा मेरा, जी माइनस ए. ठीक है, इफेक्टिव मोशन मेरा जी माइनस ए. सो विदाउट एयर रेजिस्टेंस माई पुश इज दिस, विद एयर रेजिस्टेंस गोइंग अप दिस इज माई पुश, विद एयर रेजिस्टेंस कमिंग डाउन दिस इज माई पुश. ठीक है, तो इसमें मेरा सबसे कम पुश है, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा पुश है डाउनवर्ड, तो सबसे कम टाइम मेरा इसमें लगेगा, इसमें मेरा सबसे कम टाइम लगेगा, इसमें मेरा मिडिल लेवल ऑफ टाइम लगेगा. सपोज इसमें मेरा 1 सेकेंड लग रहा है, इसमें मेरा 2 सेकेंड लग रहा है, तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा 3 सेकेंड, बिकॉज टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पुश जी माइनस ए. ठीक है, सो ये जी माइनस ए जो ये वाला टाइम पे ये होगा, दैट इज़ मैक्सिमम इन दिस केस. ठीक है, इट इज़ मिनिमम जी माइनस ए, मिनिमम ये होगा, ये मिनिमम होगा और ये मिनिमम होगा बिकॉज टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, सो टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम. सो अगर एक एग्जांपल लें, हमारा जी 10 है, एक्सेलरेशन में ले लूँ 2. ठीक है, सो पहले केस में मेरा आ जाएगा टाइम पीरियड 1/10, दूसरे केस में आ जाएगा 1/12 और इस केस में आ जाएगा 1/8. सो मैक्सिमम टाइम मेरा इसमें लग रहा है. ठीक है, मिनिमम टाइम मेरा इसमें लग रहा है जब एयर रेजिस्टेंस है, तो ऊपर जाने में मिनिमम टाइम लग रहा है और नीचे आने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है अगर एयर रेजिस्टेंस है. और ये वाला जो टाइम है दैट इज़ मीडियम टाइम, दोनों के बीच में टाइम लगेगा बिटवीन T1 एंड T2, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई एम ओनली हैविंग द ग्रेविटी, नो एयर रेजिस्टेंस. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव एक्सप्लेन कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन मोर पुश अगेंस्ट द मोशन, G+A का पुश मिलेगा. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विल गेट डिसिपेटेड टू 0 वेरी सून. यहाँ से यू से मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मेरा G+A रिटार्डेशन लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये यू खत्म होकर 0 हो जाएगी. ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन में मेरा क्या होगा, लेस पुश लगेगा क्योंकि मेरा डाउनवर्ड मोशन में आएगा G-A, इफेक्टिव G-A हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव G कम हो गया, सो दैट मीन्स लेस पुश लगेगा. सो नीचे टाइम पीरियड आने में मेरे को ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा. ठीक है, सो ऊपर जाने में अगर मेरा टी अप है और टी डाउन है और टी नॉर्मल है व्हेन नो एयर रेजिस्टेंस इज देयर, सो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा मेरा टी डाउन में, देन टी में, देन टी अप में. ठीक है, सबसे कम टाइम लगेगा मेरा टी अप में. राइट, सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस. जब भी एयर रेजिस्टेंस होता है बॉडी को ऊपर जाने में कम टाइम लगता है, नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, बिकॉज माई इफेक्टिव ग्रेविटी गॉट चेंजेस. एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज द मोशन, एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज द मोशन. So there are certain symmetries in our motion. So motion में सिमेट्री होता है कि टाइम पीरियड को जितना ऊपर जाने में टाइम पीरियड लगेगा उतना ही नीचे आने में, ये हमने देख लिया. दैट इज सेम, टी अप इज इक्वल टू टी डाउन. सेम इफ द एयर रेजिस्टेंस इज 0, टी अप इज इक्वल टू टी डाउन. सेकेंड इज कि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट. मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी पॉइंट पे इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम. हेयर यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट. सो सेम वे अगर मैंने ये u से यहाँ पे फेंका एंड इट विल कम डाउन विद द u ओनली, बट द दिस अगेन दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस शुड बी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड. ओके, दिस इज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन अपोज कर रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इज अपोजिट, यहाँ पे ऊपर है ये v है, ये v है, सो मैग्नीट्यूड ओनली सेम रहेगा. यहाँ पे अगर 10 से फेंक रहा हूँ तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, बट यहाँ पे नीचे के साइड में मूवमेंट होगा, यहाँ पे ऊपर के साइड में मूवमेंट होगा. यहाँ पे पॉजिटिव v होगा, यहाँ पे नेगेटिव v होगा. ओके, डायरेक्शन इज अपोजिट. सो अगर मेरे को अगर फॉर इंस्टेंस मैंने एक बॉल है वो यहाँ से फेंकी है u से. ठीक है, एक देखते हैं, एक बॉल है मैंने यहाँ से फेंकी u से, सो और दूसरी बॉल है मैंने डायरेक्ट यहाँ से फेंक दी. ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को मैंने नीचे फेंका, और ये नीचे जो फेंका वो फेंका मैंने 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और ऊपर फेंका मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से. तो ऊपर वाली बॉल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, देन हेयर ऑल्सो इट विल एक्वायर द सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड. यहाँ पे भी सेम एक्वायर करेगी, सो सेम स्पीड एक्वायर करेगी एंड इट विल कम डाउन एंड हिट विद द सेम फाइनल वेलोसिटी. और इट इज़ लाइक अ सेम केस कि अगर मैं बॉल को नीचे डायरेक्टली फेंक रहा हूँ. ठीक है, इट इज़ लाइक अ सेम केस, बट टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा पहले वाले में दूसरे से. सो विल सी हाउ द टाइम पीरियड वेरीज. सो पहले वाले केस में जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका और नीचे आई, तो इस केस में मेरा h कितना है, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, दैट आई विल टेक ये वाली साइड नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव लूँगा मैं. ठीक है, तो ये इफेक्टिव कितना मूव किया, -h, और वेलोसिटी मेरी ऊपर की साइड पे थी. ठीक है, सो दिस इज़ माई 10t इनिशियल ut1. ऊपर जाने में यहाँ से यहाँ तक आने में आई कैलकुलेट माई टाइम पीरियड, सो दिस इज़ माई t1. सो प्लस t1 माइनस बिकॉज ऑफ वेलोसिटी माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. t1 टाइम पीरियड यहाँ से ये घूम के यहाँ तक आने में t1 टाइम पीरियड. अब मैं t2 देखता हूँ कि मैंने बॉल को यहीं से जस्ट थ्रो कर दिया. ठीक है, बॉल को मैंने जस्ट
यहाँ से सेम स्पीड से थ्रो किया. सो यहाँ पे क्या हो गया, इफेक्टिवली वो यहाँ से यहाँ पे मूव किया. सो दिस इज माइनस एच अगेन, दिस इज सेम माइनस एच, बट यहाँ पे माई डायरेक्शन ऑफ स्पीड विल बी डिफरेंट. सो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी. यहाँ पे वेलोसिटी 10 थी अप साइड, यहाँ पे वेलोसिटी विल बी डाउन साइड. सो हेयर इट्स -10, same here, minus half g t2 square. So if I solve it and I'll get the value, I'll get the I'll get the relationship between t1 and t2. So t1 आपका क्या होगा, t1 will be ये ऊपर से नीचे तक का फ्लाइट, दिस इज 2t प्लस t2. ठीक है, दैट विल बी योर फाइनल t1, ये पूरा टाइम पीरियड. ठीक है, प्लस दिस t2. सो ओवरऑल जो टाइम पीरियड मेरे को t1 लगा वो यहाँ से यहाँ पे, दैट इज हाउ इट्स बीन रिप्रेजेंटेड. सो इट इज जस्ट हाउ यू अप्लाई द इक्वेशंस, फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, so on this basis we'll try to we'll go through certain illustration so that it will enhance our understanding on motion in 1D. क्योंकि motion in 1D की इतनी ही थ्योरी है, ग्रेविटी है, g लग रहा है एक, and it will always be pushing it down. We just have to consider the directions, और कुछ एक सिमेट्री होती है ऊपर जाने में बॉडी के, नीचे आने के. That is the only theory we are having. Now we enhance our theory with the practical application or with some illustrations. So पहला देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बॉल को फेंका, आई थ्रो है बॉल हेयर, सो इट गोज अप हेयर, एंड इस पॉइंट पे इट वाज एट टाइम t1, और सेम इसी पॉइंट पे इट वाज देयर एट टाइम t2. सेम हाइट इसकी दोनों टाइम पीरियड पे सेम थी. ठीक है, नॉट यहाँ पे t1 पे इसकी हाइट थी और ये सेम ऊपर गया, और यहाँ पे t2 हाइट यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड पे अगर गया तो यहाँ पे 3 सेकेंड पे भी सेम हाइट पे था, ऊपर जाके नीचे आया. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बॉल गई, यहाँ पे बॉल गई, तो t1 यहाँ पे पहुँचा और सेम हाइट t2 यहाँ पे पहुँचा. सो t2 इज ग्रेटर दैन t1. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज कि मेरे को हाइट दे रखी है, वेलोसिटी विल गेट 0 एट दिस पॉइंट. मेरे से पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट P, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी. ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दे रखी मेरे को, कितनी वेलोसिटी है. आई हैव बीन आस्क्ड कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर t1 एंड t2 कितनी है. t1 तक जाने में, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में, फ्रॉम हेयर टू हेयर, what will be my t1 if I consider the time period t1, what will be my average speed and average velocity. ठीक है, so average velocity will be same for both t1 and t2 because average velocity is what, total displacement over time. ठीक है, so not the same but displacement दोनों केस में सेम होगा, but time period दोनों में चेंज हो जाएगा. For the t1 the displacement is h, time period will be t1. सेकेंड केस में हो जाएगा displacement again h and time period will be t2. बट average speed में क्या होगा, उसमें हो जाएगा this time period पहले में आ जाएगा h डिवाइडेड बाई t1, सेम डिस्टेंस, और ऊपर जाने में सेम डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगा. बट नीचे आने में एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा. ठीक है, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस विल बी द डिस्टेंस. ठीक है, so for the second time period that we are going to see here, but let's follow it with the flow जो जिस तरीके से हमसे पूछा गया. so let's start. so यहाँ पे मेरे को बोला गया कि let's see height is the h is given to me, so h is ut1, यहाँ से t1 तक पहुँचा. ठीक है, h में मैं दोनों इक्वेशन लिखूँगा, मेरे पास दोनों हाइट सेम है मेरी, तो यहाँ पे ut1 माइनस 1/2 gt1 स्क्वायर, दैट इज अपवर्ड मोशन, और डाउनवर्ड मोशन कितना होगा, ut2 माइनस 1/2 gt2 स्क्वायर, दैट इज माई डाउनवर्ड मोशन. ठीक है, अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, आई इक्वेट दिस थिंग. तो इसको इक्वेट करके आई गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन u एंड t1 एंड t2. t1 एंड t2 इज गिवन टू मी, t1 एंड t2 गिवन है. ठीक है, आंसर मेरे को t1 2 में ही निकालने. h मैंने दोनों साइड की, h मेरा सेम होगा दोनों टाइम पीरियड के लिए, तो आई पुट दिस वैल्यू in the second equation of kinematics. h is equals to ut1 minus 1/2 t1 square, or ut2 minus 1/2 gt2 square. While coming down, this is down, while going up, this is up. okay, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, h को h से इक्वेट किया, so I've got the relationship between u and t1 t2. so यहाँ से मेरा u आ गया is equals to 1/2 g t1 plus t2. ठीक है, now I put this u back in this equation. ठीक है, h मेरे को गिवन है, t1 t2 पता है, I'll put it back and I've got the value of h here. I've got the value of h here. h was not given, sorry. So h was being asked, so h is not given. So here we eliminate h
here by quitting this. So यहाँ पे अगर h मेरे को निकालना है तो I am going to calculate h. I put this value of u back here and I calculate the value of h. h की वैल्यू आ गई मेरी 1/2 g t1 t2. ठीक है. Now I have been asked के p पे मेरी कितनी होगी velocity. p पे कैसी होगी is apply this equation v is equal to u minus gt. ठीक है, gt1. ठीक है, आई पुट द वैल्यू ऑफ वी पी निकालनी है, u मेरे को पता है, पुट द वैल्यू ऑफ u हेयर. ठीक है, सेम वे u मैंने यहाँ पे डाला, t1 मुझे पता है, इफ आई एम कैलकुलेटिंग इट आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी पी एस g/2 t2 माइनस t1. राइट, अब मेरे को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये एच मैक्स कितना पहुँचा. एच मैक्स कब पहुँचेगा, जब वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाए. दैट इज़ द पॉइंट व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट. वेलोसिटी जीरो हो जाए तो आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs. तो v स्क्वायर वी बी इज़ माई फाइनल वेलोसिटी इज़ माई जीरो, u स्क्वायर इज़ माई दिस, u स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डालूंगा. u ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड, यहाँ से मैं वैल्यू डाली तो आई g मुझे g इज़ गिवन, सो एच मैक्स मेरा आ गया. ठीक है, एच मैक्स इज़ u स्क्वायर बाई 2g. u स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाली एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ एच मैक्स. ठीक है, यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू इफ़ आई पुट इट हेयर टू हेयर, u की वैल्यू यहाँ से ये यहाँ पे डालो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ एच मैक्स. एच मैक्स आ गया आपके पास. देन यू नो this is your h max. Now you know this is h max minus h. ठीक है, h max minus h आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा. दिस डिस्टेंस यू गॉट h max minus h. नाउ अब मेरे को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, अगर मेरा मोशन यहाँ से यहाँ तक का, ये ए पी मोशन अगर मैं कंसिडर करूँ फॉर द टाइम पीरियड t1, यहाँ पे क्या है मेरा, दोनों के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दोनों के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे अभी तक मेरा टर्न अराउंड नहीं हुआ है यहाँ से. ठीक है, तो दैट्स वाई सो दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज h, टाइम पीरियड इज t. सो दोनों की मेरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगी. फॉर टाइम पीरियड t2 के लिए मेरी डिस्प्लेसमेंट इज अगेन ओनली h. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी फॉर द टाइम पीरियड t2 एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी h डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t2. बट एवरेज स्पीड जो आएगी मेरी, दैट इज़ माई डिस्टेंस h प्लस h max minus h times 2, that will be my distance divided by t2. ठीक है, h ये हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक का दिस इज h, दिस इज माई h max minus h, दिस पोर्शन इज h max minus h. सो यहाँ से यहाँ पे जाने में इसको 2 times of h max into 2 times of h max minus h plus h, this is my displacement. So AP, this is AP, and now 2 times of PB, 2 times of PB, it is my h max minus h. So I've got this average speed here. Okay, so this was an illustration in the motion in one dimension under gravity. So let's see another illustration. So ये collision वाली एक illustration है कि अगर एक दो बॉल को, दिस वी कैन डू इट विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑल्सो, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो विल डू ऑल द, जब भी हमारे पास दो मोशन होंगे ना, दो बॉडीज़ का मोशन होगा, इट्स ऑलवेज गुड टू डू इट विद द रिलेटिव मोशन रादर देन कंसिडरिंग both motion separately and then equate the things. The best would be to solve it with the relative motion. But here for the time being, अभी हमें relative motion हम लोग consider करके चल रहे हैं कि अभी हमारे को इतनी understanding नहीं है. So we'll solve it in a manner that we have studied till now in the theory. तो सपोज एक मेरी बॉल ये है, मैंने इसको ऊपर फेंका, दूसरी बॉल ये है, इसको मैंने भी ऊपर फेंका. तो मेरे को बताना है कि कोलिजन में टाइम पीरियड कितना है. तो कोलिजन कैन हैपन इन 3 प्लेसेस. लेट अस अस्यूम कोलिजन कैन हैपन इन 3 प्लेसेस. या तो कोलिजन इस फर्स्ट बॉल या तो ऊपर हो इन दोनों से, सो यहाँ पे ये मूव करके यहाँ पे आया. ठीक है, और यहाँ से ये नीचे वाला मूव करके यहाँ पे गया. सो कोलिजन इज अबव दिस एच. ठीक है, कोलिजन इज बिटवीन दिस एच, या तो यहाँ पे होगा कोलिजन, तो ये ऊपर से मूव करके यहाँ तक आ गया एंड ये V2 यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया. ठीक है, या कोलिजन बिल्कुल डाउन जाके हो, ये V1 से यहाँ पे जाके डाउन हो गया और यहाँ पे जाके, और ये H से नीचे जाके यहाँ पे कोलिजन हुआ. सो कोलिजन कैन हैपन अबव H, इन बिटवीन ऑफ H और बिलो H. दीज आर द 3 सिचुएशन दैट कुड हैपन. सो लेट्स सॉल्व द इक्वेशन. सो अगर कोलिजन यहाँ पे हुआ, सो S2 ने जो ट्रैवल किया, दिस इज माई S2 डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज माई S1 डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे H इज गिवन S2 माइनस S1. ठीक है, इसमें क्या होगा मेरा, दिस इज माई actual displacement of 1 is this one only. This is my displacement of 1. This is S1 और S2 क्या है, this S2 is this displacement plus S2 कितना हो जाएगा मेरा H. ठीक है, this is थर्ड में क्या होगा, मेरा जो displacement है for this is
this one is S1, this one is S1, and for S2 is this one only. So here S1 minus S2 is my H. ठीक है. Now तीनों में मैंने S1 and S2 का H में relationship देख ली. Now I just have to put the values in S1 and S2 and see what is the relationship between time and velocities. Velocities are given v1 and v2. Okay. So S1 here is v1. यहाँ पे दोनों टाइम पीरियड जो कोलिजन होगा दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा और दोनों सेम टाइम पे रजिस्ट करे गए हैं. तो v1t माइनस 1/2 gt². फॉर S2 क्या होगा यहाँ पे S2 को ऊपर फेंका गया पॉजिटिव डायरेक्शन, v2t माइनस 1/2 gt². ये हो गया S1 और S2. सेकेंड केस में S1 इज़ नेगेटिव यहाँ पे, बिकॉज इफ आई कंसिडर दिस एज अ 0 पॉइंट. सो यहाँ से ऊपर S1 वॉज पॉजिटिव, ये हेयर S1 वॉज नेगेटिव. सो S1 इज़ नेगेटिव फॉर इट्स S2 इज़ पॉजिटिव, ये इसके ऊपर है. सो S2 इज़ पॉजिटिव हेयर, S1 इज़ नेगेटिव क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे है ये. ठीक है. वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है दोनों केस में, पॉजिटिव, और जी की डायरेक्शन दोनों में नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव साइंस. यहाँ पे क्या है मेरा, आई हैव टू फाइंड आउट S2 माइनस S1. तो इस इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा एंड आई जस्ट एड इट एंड आई गॉट दिस वैल्यू. Here I have found out t comes out to be h divided by v2 minus 1. Here also the t comes out to be same, h divided by v2 minus v1. So we'll see the third scenario. यहाँ पे क्या है, इससे रेफरेंस लाइन से इट इज़ डाउन S1, सो माइनस S1 इसका डिस्प्लेसमेंट है. सेम वे इससे इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस S2 है. ठीक है. सो माइनस S1, वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की सेम है. डायरेक्शन ऑलवेज रिमेंबर, जो डिसाइड कर रहे हो जस्ट पुट दैट. अगर नीचे वाली साइड में पॉजिटिव ले रहे हो सो अकॉर्डिंगली डिसाइड द डायरेक्शन. अगर ऊपर वाली साइड में पॉजिटिव ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली डिसाइड डायरेक्शन. तो हमने इस केस में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ली है. ठीक है. तो V दोनों ऊपर में फेंक रहे हैं तो दोनों में हमने पॉजिटिव लिया है. G मेरा दोनों में नेगेटिव होगा, दिस इज G नेगेटिव, दिस इज G नेगेटिव. और S1 बिकॉज के किस पॉइंट पे कोलिजन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग S1 और S2 का साइन चेंज हो रहा है. तो इस केस में S1 इज़ नेगेटिव. ठीक है. और S2 भी यहाँ पे नेगेटिव है, S2 नेगेटिव, एंड आई पुट दिस वैल्यू एंड फाइनली आई वांटेड टू डू दिस S1 माइनस S2. सो S1 माइनस S2 आई माइनस दिस इक्वेशन both the sides and I add into this equation and I've got this. And again the same thing, the time period comes out to be h divided by v2 minus v1. So all three cases the t comes out to be same, right? This is how, if any problem on collision will come, so that's how we have to solve the problem on collision. Okay. So another problem है, इसके अंदर मेरे को सिचुएशन 3 केसेस दे रखे हैं. अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूँ, ठीक है, तो वो t1 टाइम में आके नीचे गिरती है. ठीक है. ये केस 1 हो गया. दूसरा केस दे रखा है, अगर मैं बॉल को डायरेक्टली नीचे सेम ऊपर फेंक रहा हूँ v से, u से, u इनिशियल वेलोसिटी, और सेम उसी बॉल को अगर मैं सेकंड केस में उस बॉल को u नीचे फेंक रहा हूँ, नीचे डाउनवर्ड u वेलोसिटी से. और थर्ड में केस में ये जो तीसरा केस है, दिस इज माई, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द बॉल. ओके. u इज इक्वल टू 0. पहले केस में u से ऊपर फेंका, दूसरे में u से नीचे फेंका, तीसरे में जस्ट ड्रॉप किया. तो इन तीनों में मेरे को टाइम पीरियड बता रखा है. इसमें t मेरे को लग रहा है, इसमें पहले वाले केस में जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ t1, इसमें लग रहा है t2. मेरे को निकालना है इन तीनों में रिलेशनशिप क्या बनेगी. ठीक है. तो मेरे को पता है तीनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ माइनस h ओनली. ठीक है. अगर मैं यहाँ से लूँ तीनों का तो दिस इज़ माइनस h. ओके. नाउ आई जस्ट पुट द वैल्यू. मुझे t और h में रिलेशनशिप निकालनी है. और टी और एच में रिलेशनशिप मेरी क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT². सो उसमें लगाएंगे हम. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले केस में, दिस इज माई फर्स्ट केस, माइनस एच, दिस इज माइनस एच. साइन याद रखना है बस यहाँ पे, साइन फॉर दिस इट इज़ माइनस एच. ठीक है. यहाँ पे u इज़ पॉजिटिव, ऊपर डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, u इज़ पॉजिटिव और g नेगेटिव रहेगा तीनों केस में. ठीक है. सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में u इज़ माई नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज this direction we have taken negative, this is positive. so second case में जो मेरा u है that is negative. ठीक है. so h इसमें भी negative होगा, h क्योंकि नीचे यहाँ तक आ रहा है डिस्प्लेसमेंट. u मेरा second case में negative होगा, माइनस ऑफ g t2² will be same for the time period t2. अब थर्ड में क्या है मेरा, u is my 0, this ut will become 0, h minus 1/2 gt². ठीक है. this will be my 3 equations. now I equate these things. Once I equating this, I got the value of u, जैसे हमने पिछले किया था पीछे वाले केस में. I equate this and I got the value of u here, and I put the value of u here, and I've got the value of h. So h is my this one. Now once I got the value of h, I put this value of h here. Once I put the value of h here, I got the relationship between t1 and t2.
ठीक है, क्योंकि मेरा जो अननोन्स थे यहाँ पे दैट इज़ यू एच, और यू और एच को मैंने T1 एंड T2 की टर्म्स में आई हैव कैलकुलेटेड, यू को निकाल लिया मैंने दिस, देन आई हैव टेकन द एच इन T1 T2 टर्म्स एंड आई पुट दिस एच इन द इक्वेशन नंबर 3 वेयर आई हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन T एंड T1 T2. दिस इज माई रिलेशनशिप कि अगर बॉल को जस्ट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसमें टाइम पीरियड लगेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि अगर बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ 15 से और नीचे फेंक रहा हूँ 15 से, सो इसमें जितना टाइम पीरियड लगेगा T1, इसमें जितना टाइम पीरियड लगेगा T2, उसका अंडर रूट जो होगा दैट विल बी द टाइम पीरियड अगर मैं बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ. सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप इन दीज 3 सिनारियोज. बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, बॉल को नीचे फेंक रहा हूँ विद सेम स्पीड, और बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इन तीनों टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप. ओके, T इज इक्वल टू रूट T1 T2, राइट. सो नेक्स्ट एक अनदर कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी अगर ड्रॉप कर रही है किसी मूविंग बॉडी से, तो द कॉन्सेप्ट इज इट रिक्वायर्स द स्पीड ऑफ द बॉडी. ओके, सो सपोज एक बॉडी, दिस इज़ माई कार, ओके, एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी सम v वेलोसिटी, और मैं यहाँ से इफ़ आई ड्रॉप समथिंग आउट फ्रॉम एयर, सो फ्रॉम द ग्राउंड परस्पेक्टिव दिस वेलोसिटी इज सेम एज द कार वेलोसिटी. ये जो मैंने पैकेट ड्रॉप किया इसकी भी वेलोसिटी इज़ माई v वेलोसिटी ओनली, ठीक है. अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से मैं कुछ चीज़ थ्रो कर रहा हूँ तो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ दैट कार, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट की मूविंग जो मेरा फ्रेम है उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस. ओके, दैट रिमेंबर कि दिस इज़ फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस. ओके, सो इसी इलस्ट्रेशन पे एक क्वेश्चन बेस्ड है कि एक बलून है दैट इज़ राइजिंग अप विद एक्सेलरेशन a, ठीक है. इट इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 एंड इट इज़ राइजिंग अप विद a. T नॉट टाइम पीरियड के बाद एक पैकेट ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, एक पैकेट ड्रॉप कर दिया यहाँ से, सो इट एक्वायर्स द सेम वेलोसिटी ऑफ बलून. इट रिक्वायर्स द सेम वेलोसिटी एज बलून. सो बलून ऊपर को जा रहा है, बलून की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट स्टार्ट फ्रॉम 0, सो वेलोसिटी इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. दिस इज माई 0, सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, सो ओके, मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है आफ्टर टाइम पीरियड, सो आई कैन यूज अनदर वन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. ओके, v इज इक्वल टू u प्लस 80 यूज़ करूँगा तो यहाँ पे u इज 0, सो माई फाइनल वेलोसिटी इज a T0. ये मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई, और इस पॉइंट तक मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, दैट आई कैलकुलेटेड फ्रॉम v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है. ये 0 हो गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया इसने T0 टाइम पीरियड में, 1/2 a T0 स्क्वायर, ठीक है. ये मेरा डिस्टेंस आ गया ट्रैवल, ये मेरी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे a T0. और मेरे को बोला है कि अब यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो जितनी इसकी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड ये एक्वायर कर लेगा, v a T0. सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, a T0. अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई. नाउ इट इज़ अ मोशन इन वन डायमेंशन अंडर ग्रेविटी. ये ऊपर जाएगा बिकॉज इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, दिस g इज कमिंग डाउन एंड इट विल फॉल डाउन हियर. सो अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना कितने टाइम पीरियड में फॉल डाउन हुआ, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना कितने टाइम पीरियड में. तो यहाँ से यहाँ तक का मेरे को पता है, मैंने हाइट निकाल ली थी माइनस हाफ GT स्क्वायर फॉर द ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस साइड इज एम टेकिंग पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है. ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था इन द बलून वॉज राइजिंग अप एट एन एक्सेलरेशन a. सो टाइम पीरियड T0 में दिस वॉज द हाइट गेन, ठीक है. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज इन द दिस डायरेक्शन, सो इट इज़ a T0 into t हाफ GT square, that is minus half GT square, g is downward. So I've got the equation in, I'm solving this. So t square मेरे को निकालना है, t square का मतलब है मेरे को इक्वेशन मिल गई इन t, तो इक्वेशन मेरी फाइनल बन गई GT square minus 2a T0 t minus a T0 square. T0 is given to me, a is given to me, g is given, so I'll calculate t with the quadratic equation minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a, and I found out the T1 and T2. With this I can get the, after putting the value of v, this is my a is my, this is my b, this is my c, I put the value of abc here and I've got the roots T1 and T2. T1 and T2 की value जो आएगी that is this one, a T0 by g 1 plus minus root 1 plus g by 2. Okay, so this, after solving this I've got the value of t, this कि इतने टाइम पीरियड में ये ब्लॉक यहाँ से उठ के यहाँ पे गिर गया, ठीक है.
तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से इफ आई थ्रो समथिंग तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट टेक द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेम विच इज मूविंग. ओके, सो दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस. ठीक है, सो बलून मूव कर रहा है, बलून से मैंने कुछ चीज़ फेंकी, सो इट एक्वायर्स द सेम वेलोसिटी ऑफ बलून. ओके, बट इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ observer on the ground, बट अगर मेरा ऑब्जर्वर बलून के अंदर ही बैठा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में द वेलोसिटी इज लाइक ये ड्रॉप हुआ है जस्ट. ओके, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द रिलेटिव वेलोसिटी थिंग. सो फॉर द, और अगर मेरा ऑब्जर्वर अगर बलून में बैठा हुआ है, फॉर the observer perspective it is just drop, so इसकी initial velocity will be 0. okay, from the observer perspective where it's sitting in the balloon. Okay, I hope it is clear. So now we'll move on to the next part. We'll go through some theory on this motion in a inclined plane. So let's start. मोशन अपॉन एन इंक्लाइन प्लेन. सो पहले देखते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है. कि अगर कोई चीज़ इंक्लाइन पे रखी है तो व्हाट डज इट मीन बाय इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन का मतलब यह है 1 डिग्री राइज इन वर्टिकल व्हेन यू मूव n डिग्री ऑन द इंक्लिनेशन. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 10 चला तब जाके इसका 1 डिग्री राइज हुआ, तो माई इंक्लिनेशन इज़ 1/10. सो 1 यूनिट राइज इन वर्टिकल व्हेन यू वॉक n unit along the plane up. n unit along the plane up. This is what we call a inclination, right? So inclination is sin theta 1/n. Okay, so inclination again is कि vertical में कितना rise हुआ when you move along the plane. Okay, so 1/n, right? This is my inclination. So अब मेरे को motion देखना है inclined plane पे. How is the motion has been going on in the inclined plane? Suppose this is my horizontal plane. ठीक है, इसके ऊपर इट इज़ मेकिंग एन इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल थीटा. ओके, सो नाउ दिस, अगर यहाँ पे पार्टिकल है, इफ आई एम गोइंग टू जस्ट रिलीज दिस पार्टिकल इज हैविंग अ टेंडेंसी टू कम अलॉन्ग दिस लाइन, BA लाइन के अलॉन्ग होगी. इट कैन नॉट गो दिस लाइन, इट कैन नॉट गो दिस लाइन, इट कैन नॉट गो दिस लाइन, इट कैन नॉट गो एनी अदर थिंग. इट कैन ओनली कम टुवर्ड्स दिस लाइन ओनली, AB. It can only come towards a AB line. Only this line it is going to come, because only along this line there is a maximum decrease in the potential energy. So this is a concept होता है ये कि every object in the nature tries to go down to its minimum potential energy. जितना जल्दी हो सके वो अपनी minimum potential energy पे जाना चाहता है. अगर कोई बॉल है, आपने उठा के उसको यहाँ से यहाँ पे रख दिया, तो क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई. अगर ये आप यहाँ से बेस हटा दो इसका, इफ़ यू रिमूव दिस, सो ये अपनी क्या करेगा, it try to reduce down its potential energy as early as possible. So it is not like it is going to go this direction or this direction. So this is the maximum reduction in the potential energy direction. So it will come down downwards. It will come down vertically downwards. Same way here. So it will come down this line. So it is called a line of greatest slope. Okay, इस line of greatest slope पे maximum reduction in potential energy हो रहा है. So that's why it will follow a line of greatest slope. But you can make it, अगर आप यहाँ पे कोई groove बना दो, if you make some groove and you can make the particle move in this line also. Okay, you can make the groove and you can make the particle move in any other line. But अगर without groove just drop कर रहे हो particle को, so it will always come in the direction of line of greatest slope. This is the line of greatest slope. Okay, so body allows to move freely, so it will always follow the line of greatest slope. And if you make any groove, so if you make this groove, so this particle can follow up this groove and come down here. Okay, within a groove you can make the particle move. Now we'll see, we'll enhance our understanding on motion upon an incline with certain illustration. Suppose एक particle है, let's see कि inclination का अगर मैं particle को incline पे drop कर रहा हूँ और I am dropping it just from here, so देखते हैं कि वो bottom पे पहुँच के at this point इन दोनों की velocity कितनी हो जाती है, and we'll see कि दोनों को bottom तक पहुँचने में time period कितना लग रहा है. ठीक है, केस 1 में मैंने पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया, केस 2 में मैंने यहाँ से ड्रॉप किया. ठीक है, यहाँ से के पहले केस 2 देखते हैं. अगर मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो इट विल बी रीचिंग एट दिस पॉइंट विद स्पीड √2gh. हाउ इट इज़ माई v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh. दिस इज़ माई 0, सो v इज इक्वल टू √2gh. ठीक है, ये h है मेरा, दिस इज माई h, दिस इज माई s.
अब दूसरे केस में क्या है, मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया। सो इस पार्टिकल में क्या है मेरा, यहाँ पे दिस इज़ माई जी, बट इस डायरेक्शन में कितनी लगेगी, जी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। दिस इज़ माई थीटा, ठीक है, दिस माई थीटा, देन दिस वन इज दिस इज 90 माइनस थीटा, ये वाला पोर्शन, बिकॉज दिस इज 90, ये 90 माइनस थीटा, दिस विल बिकम थीटा। ओके, सो दिस इज थीटा, दिस इज जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा मेरा जी साइन थीटा। सो मोशन, सो माई पुश अलॉन्ग द इंक्लाइन विल बी जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू ले ली यहाँ पे, जी साइन थीटा, ये मेरी अब डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में मेरी जो एक्सेलरेशन लग रही है, जो पुश लग रहा है, दैट आई एम गोइंग टू टेक इन द काइनेमेटिक इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे मैंने इक्वेशन में लिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह मैंने जी साइन थीटा डाल दिया इंटू एस। साइन थीटा को मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा इज माई एच बाई एस, साइन थीटा इज माई एच बाई एस, आई पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एच बाई एस, एस से एस कैंसिल। सो फाइनली हेयर ऑल्सो माई स्पीड इज कमिंग सेम, √2gh। ओके, चाहे मैं किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे फेंकूँ, इफ आई ड्रॉप समथिंग ऑन एनी इंक्लाइन प्लेन, अगर वो हाइट उसकी h है, सो इट विल एक्वायर द सेम स्पीड 2gh ओनली, ठीक है, इट विल एक्वायर द सेम स्पीड। अगर मैं इसको इस इंक्लाइन प्लेन पे भी फेंकूँगा, ठीक है, इन सब के नीचे आने में टाइम पीरियड चेंज हो जाएंगे जितना लंबा पाथ होगा, बट इन सब का जो ये बॉटम पे जो पहुँचेंगे, इन सब की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी √2gh। चाहे मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूँ, चाहे मैं किसी भी इंक्लाइन पे फेंकूँ, इस इंक्लाइन पे फेंक रहा हूँ मैं या इस इंक्लाइन पे फेंक रहा हूँ, सो इट विल बी सेम वेलोसिटी व्हेन इट्स हिट द बॉटम। ओके, सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज ऑल्सो √2gh, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज ऑल्सो √2gh। ओके, नाउ द टाइम पीरियड देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का आने में इसको टाइम पीरियड कितना लगा। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए मेरे को टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप चाहिए, दैट इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। दिस माई सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी से यू टी कैंसिल हो गया, यू टी इज जीरो बिकॉज माई इनिशियल वेलोसिटी जीरो, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द बॉल। तो टी की वैल्यू मेरी कैसे आ गई, एस को मैंने लिख लिया, एस इज़ वॉट योर एस साइन थीटा इज़ वॉट एच बाई एस, सो एस इज़ वाई एच बाई साइन थीटा। ओके, यहाँ पे मैंने एस की वैल्यू लिख ली एच बाई साइन थीटा, जब मैं यहाँ पे 2 ले गया 2s की वैल्यू मैंने एच बाई साइन थीटा लिख ली, जी मेरा नीचे आ गया, साइन थीटा भी नीचे आ गया ये वाला, ठीक है, टी स्क्वायर यहाँ पे, अब मैं इसका रूट ले लिया, मेरा आ गया √2h बाई जी कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं किसी इंक्लाइन पे फेंक रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एक और नॉर्मल केस में, इस केस में मेरा क्या आता है, मेरा √2h बाई जी, दैट इज़ टाइम पीरियड। बट अगर मैं किसी इंक्लिनेशन पे फेंक रहा हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, √2h बाई जी कॉसेक थीटा। ठीक है, दैट इज़ माई टाइम पीरियड। यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर 90 है तो देन दिस वैल्यू इज़ कमिंग 1। ओके, दिस वैल्यू इज़ कमिंग 1। और धीरे धीरे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मेरा थीटा यहाँ पे ये कुछ थीटा है, सो जैसे कॉसेक का जो मेरा ग्राफ होता है दैट इज़ लाइक दिस वन, जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज़ होता है, दिस द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा डिक्रीजेस, सो टाइम पीरियड डिक्रीजेस। सो थीटा इंक्रीजेस, अगर मेरा थीटा ये है तो मेरा यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा थीटा कम है तो यहाँ से यहाँ तक आने में थीटा कम है, कॉस सेक थीटा बढ़ जाएगा, सो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। थीटा लेस कॉसेक थीटा हाई, सो टाइम पीरियड विल बी हाई। ठीक है, अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है तो इट विल फॉलो कॉसेक थीटा 1 √2h बाई जी। ओके, सो टाइम पीरियड में विद द इंक्लिनेशन कैसे चेंज आता है, √2h बाई जी कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा मेरा कैसे वेरी करता है, फ्रॉम लाइक दिस, if you take this is my sin theta, or cosec theta will be like this. Okay, cosec theta will be like this, 0 से अगर मैक्सिमम वैल्यू तक 0 से 90 डिग्री तक आए तो my cosec theta is decreasing, my cosec theta is decreasing. so थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री इंक्रीज़ करेगा, cosec theta is my cosec theta is decreasing. okay, जितना छोटा cosec थीटा होगा उतना मेरा हाई वैल्यू होगा, उतना टाइम पीरियड लगेगा। जितना कम इंक्लिनेशन होगा, इफ आई टेक दिस इज माई इंक्लिनेशन टू रीच माई एच, तो जितना छोटा इंक्लिनेशन लगे रहेगा, जितना कम थीटा रहेगा उतना टाइम पीरियड लगेगा इस बॉल को इस हाइट को ट्रैवल करने में। ठीक है, सो दिस इज माई फॉर्मूला, √2h बाई जी कॉसेक थीटा इज द टाइम पीरियड फॉर द एनी बॉल टू कम डाउन इन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, नाउ विल सी कि मोशन along any other slope rather than the line of greatest slope. Okay, motion along any other slope. So motion along any other slope we are going to see. Okay, so now this is my inclined plane. Okay, so this is my line of greatest slope and this is my
inclination angle theta. This is my theta is my inclination angle and this AB is my line of greatest slope. So इसी line के through अगर मेरा G ये है तो इसी line के through my G sin theta will come. Okay, this is my G sin theta along this line. Okay, now मेरे को बोला गया है कि मेरे को AB के through motion नहीं हो रहा, my motion is going along BD. ठीक है, दिस इज़ माई मोशन, बी डी के अलॉन्ग मेरा मोशन हो रहा है. तो पहले तो मेरे को बी डी के अलॉन्ग आई नीड टू फाइंड आउट कि बी डी है कितना, वो एस कितना है बी डी का. ठीक है, लेंथ कितनी है बी डी की. सेकेंड आई हैव टू फाइंड आउट कि इस डायरेक्शन में मेरा कितना एक्सेलरेशन लग रहा है. मुझे इसमें पता है एक्सेलरेशन, बट आई वांटेड टू नो इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है. दैट आई वांटेड टू नो. ठीक है, ये दो चीज़ें आई वांटेड टू नो. तो पहले देखते हैं. दिस इज़ माई कॉस अल्फा. कॉस अल्फा इज़ द अल्फा जिस सपोज दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट स्लोप. यहाँ से अल्फा एंगल पे मेरे को मूव कराना है. ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप एंड द लाइन वेयर योर ऑब्जेक्ट योर पार्टिकल विल मूव. ठीक है, ये पार्टिकल का मोशन है. दिस इज माई लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ठीक है, दिस इज माई लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. तो अब ये मेरे को निकालना है बी डी. बी डी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दिस इज माई अल्फा. ठीक है, ये मुझे पता है. ये मैं ये निकालूंगा क्या है ए बी. ए बी ये मुझे दिया गया, एच इज़ द हाइट. सो ए बी कितना आ गया, एच बाय साइन थीटा इज़ माई ए बी. ठीक है, ये ए बी हो गया मेरा ए बी. सो दिस वन ए बी इज़ माई एच कॉसेक थीटा. दिस इज़ माई ए बी एच कॉसेक थीटा. और दिस वन इज़ माई ए बी और बी डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ए कॉस अल्फ़ा इज़ माई ए बी बाय बी डी. ठीक है, तो बी डी कितना आ गया मेरा, बी डी इज़ माई ए बी सेक अल्फ़ा. और ए बी मुझे क्या पता है, ए बी मुझे क्या दिया है, एच कॉस सेक थीटा इंटू सेक अल्फ़ा. ठीक है, दिस इज़ माई ए बी. ए बी मेरा ये कैसे आया, ए बी इज़ साइन थीटा मेरा क्या है, साइन थीटा इज़ माई एच बाई ए बी. सो ए बी इज़ माई एच कोसेक थीटा. ठीक है, ये मेरा बी डी आ गया इन थीटा एंड अल्फा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. कॉस अल्फा मेरा ये है, दिस एंगल इज़ माई 90 डिग्री. दिस इज़ अल्फा. तो कॉस अल्फा क्या हो गया, दिस बेस डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज. बेस मेरा कितना ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बी डी. ठीक है, सो यहाँ से मेरा बी डी निकल गया. बी डी इज़ व्हाट, ए बी बाय कॉस अल्फा. 1 बाय कॉस अल्फा इज़ माई सेक अल्फा. सो ए बी सेक अल्फा. नाउ मेरे को निकालना है बी डी. अब मेरे को ए बी की वैल्यू चाहिए. ए बी आई कैन टेक आउट फ्रॉम दिस ट्राइंगल. ठीक है, ये मेरा एच है, ये ए बी कितना हो जाएगा, एच बाई साइन थीटा. ए बी इज़ माई एच बाई साइन थीटा. एच बाई साइन थीटा इज़ माई एच कॉसेक थीटा. सो ए बी आ गया. आई पुट दिस वैल्यू ए बी हेयर एंड आई गॉट द बी डी एच कॉसेक थीटा सेक थीटा. नाउ मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए इस डायरेक्शन में. मेरे को एस मिल गया. आई नीड द एक्सेलरेशन. सो आई कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड कितना लगेगा, कि वेदर दिस टाइम पीरियड इज मोर देन दिस ग्रेटेस्ट स्लोप और वेदर दिस टाइम पीरियड इज लेस देन दिस ग्रेटेस्ट स्लोप. दैट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, नाउ मेरी इस डायरेक्शन में जो मेरी एक्सेलरेशन है, पुश है, दैट इज़ जी साइन थीटा. ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा कॉस अल्फा. ठीक है, जी जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन इज माई g sin theta cos alpha. Now I just have to put the value in kinematic second equation. S is equal to ut plus half at square. U is my 0, ut is 0. S की वैल्यू मैंने रख दी h cosec this one. h cosec theta sec theta is equals to 1/2. यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी a की, that is my this value g sin theta cos alpha t square. इसको मैंने t की वैल्यू कैलकुलेट करी. my value comes out to be t is equal to रूट टू एच बाई जी कॉसेक थीटा सेक अल्फा. अब मेरा रूट टू एच बाई जी कॉसेक थीटा जो टाइम पीरियड था, दैट इज़ थ्रू द ग्रेटेस्ट स्लोप. लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पे अगर मेरा कोई बॉडी आ रही है तो यहाँ पे जो मेरा टाइम पीरियड लग रहा है वो लग रहा है रूट टू एच बाई जी कॉसेक थीटा. ठीक है, इस थीटा पे डिपेंड है. नाउ ये आ गया कि अगर मैं किसी और लाइन ऑफ स्लोप पे भेजूँ, ठीक है, रादर देन एनी अदर ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ स्लोप, अगर मैं किसी और पे भेजूँ तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, दैट इज़ सेक अल्फा. और सेक अल्फा कैसे वेरी करता है, sec alpha varies like this. So this is my cos alpha. So sec alpha varies like this. Sec alpha increases with the value of as your alpha increases. So alpha ये है मेरा, this is my line. So this is my line of greatest slope. This is my alpha. As you keep on increasing alpha, ठीक है, this all are alpha. As you keep on increasing alpha, your sec alpha increases. Sec alpha increases, your time period increases. So minimum time period you will be getting. This is the line of greatest slope time period. Line of greatest slope. This is the time period in the line of greatest slope. So into sec alpha
जैसे सेक अल्फ़ा वेरीज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और जैसे जैसे सेक अल्फ़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ेगा, दिस अल्फ़ा मीन्स के लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप से किसी और स्लोप पे अगर मैं भेज रहा हूँ तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है अल्फ़ा। जैसे जैसे ये अल्फ़ा बढ़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स मेरा नीचे आने में टाइम पीरियड उतना बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो सेक अल्फ़ा वेरीज, राइट। सेक अल्फ़ा कैसे बनता है? इट इज़ अपोजिट ऑफ कॉस अल्फ़ा, सो इट गोज लाइक दिस, ओके। सो 0 से 90 डिग्री के बीच में इट्स वैल्यू इंक्रीजिंग, ओके। जैसे जैसे अल्फ़ा इंक्रीज होता जाएगा, दिस अल्फ़ा, इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस अल्फ़ा जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा उतना उतना टाइम पीरियड उसका बढ़ता जाएगा। सो टाइम पीरियड टू स्लाइड डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन इज़ द लीस्ट अलॉन्ग द ग्रेटेस्ट स्लोप। सो टाइम पीरियड सबसे कम ग्रेटेस्ट स्लोप पे लगता है। और वाई एनी बॉडी वॉन्ट्स टू गो थ्रू द ग्रेटेस्ट स्लोप? It is the path where the maximum potential energy decreases, or any object in this natural world wants to achieve its minimum potential energy. वो अपने stable equilibrium potential पे आना चाहता है. So that is what every particle tries to achieve. Okay. So this is our motion along any other slope lines. We'll see one more illustration of inclined plane. Suppose a ball has been released from the top, ठीक है, और एक बॉल को यहाँ से मैंने यू से फेंका और ऊपर से जस्ट ड्रॉप किया, ये दोनों बीच में आके मिले कहीं पे, ठीक है, s/2 पे, s/2 पे आके मिले दोनों बॉल्स। अब मुझे बताना है, आई नीड टू नो द वेलोसिटी विद विच द बॉल्स आर थ्रोन। पहली बॉल को रिलीज़ किया मैंने तो u इज इक्वल टू 0, दूसरी बॉल को आई हैव थ्रोन सम u वेलोसिटी। सो आई नीड टू नो कि हाफ जाने में इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है पूरा सेकंड बॉल की जब ये टकराए दोनों, और इसकी वेलोसिटी निकालनी है जब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे जाके जो टकराए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है दोनों बॉल्स की, ये निकालना है। और वेलोसिटी, हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी जब दोनों मिले और इनिशियल वेलोसिटी नीचे से ऊपर फेंका और इसकी वेलोसिटी आई नो इट इज जस्ट अ ड्रॉप, सो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0। सो आई विल स्टार्ट विद द बॉल 1। सो माई बॉल 1 इज, आई विल जस्ट release the ball from here, so u1 is 0. Acceleration down the line I know along the slope is g sin theta is my acceleration down the slope, और मुझे पता है l/2 पे मिला है, तो total is l/2, so I can put the value now. v square is equal to u square plus 2as. v square, my final velocity is this for the ball 1, u is my 0, 2 into g sin theta is my a, and s is my l/2, टोटल मेरा l है तो दिस इज l/2, ओके। सो आई पुट द वैल्यू, साइन थीटा मैंने रख दिया, साइन थीटा इज माई h/l इज इक्वल टू साइन थीटा। आई पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हेयर, h/l, l से l कैंसिल, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ v1, जो बॉल 1 की फाइनल वेलोसिटी विल बी हेयर इज √gh, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू v1 की फाइनल वेलोसिटी इज √gh। आप इसमें टाइम पीरियड कितना लगा मेरा यहाँ से यहाँ तक आने में, आई कैलकुलेट द टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक कितने में आने में लगा, तो v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है √gh, आई हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, u इज 0, एक्सेलरेशन मुझे पता है ए g साइन थीटा को मैंने लिख दिया h/l इंटू t, सो आई हैव कैलकुलेटेड टाइम पीरियड इज इक्वल टू √l/g/h। अब मुझे पता है यही टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक आया तब ये कोलाइड किया, सो दोनों के टाइम पीरियड सेम है, आई नो द टाइम पीरियड हेयर, सो इफ आई नो द टाइम पीरियड हेयर आई कैन यूज दिस टाइम पीरियड इन कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी हेयर, ओके। सो इफ आई नो दिस टाइम पीरियड, सो नाउ आई विल अप्लाई द इक्वेशन इन सेकंड। यहाँ पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता है फॉर द सेकंड बॉल, आई डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई सेकंड बॉल की, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, एंड आई डोंट नो बोथ द थिंग्स। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर माइनस 2g h/l इज माई साइन थीटा इंटू l/2, इससे मेरी इक्वेशन ये आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। और मेरे को ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड में रिलेशन पता है, तो मेरे को अगला रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला, ठीक है, v मुझे पता है v2 u2 माइनस g साइन थीटा, और t मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया है, आई विल पुट दिस वैल्यू l/√gh, ठीक है। मेरे दो इक्वेशन बन जाएंगी, दूसरी इक्वेशन मेरी v और u में ये बन गई, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, और v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, और v इज इक्वल टू u प्लस 80 से ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई, ये दोनों मेरी इक्वेशन बन गई, these two are my equation, and I put the value of u2 की मेरी वैल्यू आ गई v2 प्लस √gh। if I put this value of u2 here and I've calculated it, I've got v2 0, so that means कि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है एट हाफ
L/2 पे, ठीक है, L/2 पे वेलोसिटी मेरी सेकंड बॉल की 0 हो रही है। तो अगर मेरी सेकंड बॉल की वेलोसिटी 0 हो रही है यहाँ पे, दिस इज़ माई 0, सो u2 मेरा जो किस स्पीड से मैंने फेंका, √gh, ठीक है, दिस वेलोसिटी विल कम। मैंने किस बॉल से फेंका, √gh, राइट। सो दिस इज बीन आस्क्ड टू अस कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट इज़ प्रोजेक्टेड एंड किस पॉइंट पे जब मिलेंगे, सो व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी। सो अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम इज कि पहली वाली बॉल की मुझे फाइनल पता लग गई, पहली वाली बॉल से मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया, कितना टाइम पीरियड लगा, और फिर सेकंड में दैट आई यूज़ दैट टाइम पीरियड इन द सेकंड बॉल मोशन, ओके। सो माय अनदर क्वेश्चन इज कि एक बॉल है, उसको एक इंक्लाइन से फेंका, वो यहाँ से नॉट फेंका, इसको ड्रॉप किया, यहाँ से गई वो यहाँ पे ए से बी पे आई, फिर बी से इट मूव डाउन हेयर। अब मेरे को निकालना है कि एक ऐसी हाइट पे मैं डी से ड्रॉप करूँ बॉल बी को कि वो दोनों सेम टाइम पीरियड पे कोलाइड कर जाएं, ठीक है। अगेन देखते हैं कि मैंने ए से बॉल को फेंका, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे गई, और मेरे को ये निकालना है, ये एच में रिलेशन निकालना है, एच का रिलेशन, कि मैं किस हाइट से डी ये बॉल 2 को थ्रो करूँ कि ये दोनों एक पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके कोलाइड हो जाएं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा टाइम पीरियड निकालना है कि जब मैं दोनों को रिलीज़ करूँ और दोनों जब कोलाइड करें, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। सो ओके, इस बॉल को जब मैंने रिलीज़ किया, इस बॉल को रिलीज़ किया एक सेम टाइम पे, और जब दोनों कोलाइड करी तब भी सेम टाइम, तो इन दोनों का टाइम इंटरवल दोनों का सेम है। इसका टाइम इंटरवल क्या होगा, TAB प्लस TBC, ठीक है, AB तक जाने में और BC तक जाने में, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, TDC, ठीक है। इन दोनों का टाइम इंटरवल सेम है। ये एक मेरा वे ऑफ अप्रोच है, विद दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो अब देखते हैं TAB कितना है। TAB इज़ माई, वी हैव कैलकुलेटेड √2h/g cosec थीटा साइन 1/sin थीटा हो गया, ठीक है, दिस इज़ TAB। यहाँ से मैं VB निकाल लूँगा, यहाँ पे मेरी, बिकॉज आई नीड वेलोसिटी हेयर टू कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड, आई नो दिस h, दिस इज h, ठीक है, दिस h एंड दिस h इज़ नोन। सो अगर मेरे को ये h पता है, आई वांटेड टू नो द टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक, सो आई वांटेड टू नो द वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी इज़ माई u² प्लस 2gh, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, vb की वैल्यू हो गई, u मेरा 0 था, g की वैल्यू g sin थीटा, एंड टाइम पीरियड, सॉरी आई यूज़ v इज इक्वल टू u plus 80, sorry, time period is given to me, I have calculated the time period here, so it's better to use this formula, okay, so I've used this formula। so VB पॉइंट B पे u मेरा 0 है, a की वैल्यू g sin थीटा हो गई, t मैंने निकाल लिया √2h/g 1/sin थीटा, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई, यहाँ से sin थीटा से sin थीटा गया, so I've got the value of VB as √2gh, जो कि मेरी यहाँ से भी आ जाती, जो कि हमने कैलकुलेट करी है कि अगर मैं ये बस वी जस्ट कंसीडर द हाइट व्हेन एवर वी आर ड्रॉपिंग, सो इट विल बी सेम। अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ और किसी भी इंक्लाइन पे ड्रॉप कर रहा हूँ बॉल को, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी हैव कैलकुलेटेड, इट विल कम आउट एज √2gh ओनली, सो इट हैज़ कम √2gh। मेरे को टाइम पीरियड निकालना है BC का, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम पीरियड लगा मेरे को पहुँचने में, इट इज़ माई h डिवाइडेड बाई √2gh, ठीक है। ये टाइम BC आ गया मेरे पास, टाइम AB आ गया, टाइम BC आ गया, ठीक है ना। दोनों का टाइम पीरियड कितना हो गया, दोनों का टाइम पीरियड हो गया मेरा, आई जस्ट ऐड देम एंड आई द नेक्स्ट इज आई वांटेड टू नो द टाइम पीरियड व्हेन द बॉल विल कमिंग डाउन फ्रॉम D to C। जब मैंने D पे बॉल को ड्रॉप किया तो वो कितना h ट्रैवल करने में कितना टाइम पीरियड लगा, तो ये निकालूंगा मैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ओके। मेरे को आई नीड अ रिलेशनशिप इन टाइम and I know the h, okay, so u is my 0 this side, so my time period DC comes out to be √2h/g, h/g। I just equate these things and I calculate the unknown h, equation जो मेरी हो जाएगी √2h/g is equals to 1/sin theta √2h/g plus h/√2gh, okay, this will be my इक्वेशन, दिस विल बी माई इक्वेशन। यहाँ से सारे नोन है, h इज़ अननोन, आई √2/g से दोनों साइड डिवाइड, दोनों मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों साइड आई टेक आउट √2/g एंड आई कैंसल इट एंड जस्ट प्रोसीड फर्दर एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम दिस इन टर्म्स ऑफ h एंड sin थीटा, ओके। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन कि किस हाइट से मैं इस बॉल को ड्रॉप करूँ ताकि यहाँ से जब बॉल मेरे पास मूव करके आए दोनों कोलाइड कर जाएं, ठीक है।
So I think this is for today. Next lecture we'll do the relative motion in the next lecture. So up to this lecture it's fine. So we have studied up to motion in gravity, and we have seen certain illustration to enhance our understanding in motion in gravity. We have seen the analytical way how to analyze the motion of gravity in 1D. Then we have seen the motion on the inclined plane, and what is this greatest slope, और why किसी बॉडी को भी उसकी टेंडेंसी होती है ग्रेटेस्ट स्लोप की तरफ जाने पे, और अगर उसको स्लोप किसी डिफरेंट स्लोप पे मूव कराओ, सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम and the moving of and the motion, time and motion. This we have seen. So we'll just take a quick review here one more time for this lecture, and then we'll wrap up, and again we'll meet up in the next lecture then. Okay, so here we have studied motion in 1D. ठीक है, मोशन इन 1D में हमने देखा फ्री फॉल हमारा बोला जाता है ऊपर नीचे और जस्ट ड्रॉप भी कर दो. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड एज अ फ्री फॉल इज एनीथिंग फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, वी कॉल इट अ फ्री फॉल. जी की वैल्यू हमारे को वी जस्ट कंसिडर टू एजम्पशंस लेके हम लोग अपनी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. वन इज़ कि जी ऑल द मोशन इन 1G 1D अंडर द ग्रेविटी इज़ हैपनिंग नियर द अर्थ सरफेस, जहाँ पे मेरा जी जो है 9.8 कॉमन रहता है, और फॉर सर्टेन केसेस इट कैन टेक 10. मोशन कैसा होता है, मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से जाके मोशन स्टार्ट होके, बिकॉज अपोजिंग पुश लग रहा है, तो इट विल गो एंड इट विल रीच अप टू मैक्सिमम पॉइंट एट विच द वेलोसिटी विल गेट 0. फिर डाउनवर्ड पुश अगेन मिल रहा है, तो इट विल कम डाउन हेयर. तो यहाँ पे एक सिमेट्री होती है, ऊपर जाने में जितना टाइम पीरियड लगता है, ऊपर जाने में जितना टाइम पीरियड लगेगा उतना टाइम पीरियड नीचे आने में लगेगा. ये एक सिमेट्री होती है इसकी. दूसरी सिमेट्री होती है किसी भी टाइम पीरियड पे जो इसकी स्पीड होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, दैट इज़ सेम. किसी भी अगर मैं टाइम पे किसी भी लाइन पे देखूँगा अलॉन्ग डिस्टेंस, तो दोनों ऊपर जाने के टाइम पे नीचे आने के टाइम पे दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, बट डायरेक्शन चेंज होगी दोनों की. एक ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे आ रहा होगा. ठीक है. सो दिस इज द सिमेट्री इन मोशन वी हैव सीन. एंड दिस इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो जिस जो टाइम पीरियड और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज दिस वन, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास कंसिडरिंग there is a air resistance is 0. That is the assumption that we have taken. Now again we have taken the air resistance. Air resistance is one thing which is opposing the motion. Opposing the motion means it is always going against the motion. अगर motion ऊपर की side है, it will come this side, और अगर motion नीचे की side है, it will go upside. But gravity will always be on the downside. So effective gravity दोनों केस में different हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा time period ऊपर जाने में कम हो जाता है, नीचे आने में बढ़ जाता है. ठीक है. We have seen the symmetry ऊपर नीचे जाने में. We have done certain problems here. The good thing was average velocity or average speed निकालनी थी मेरे को for this time period T1 and T2. Here we have seen the collision happening at this reference line, at this middle reference line, and at this bottom reference line. तीनों के लिए टाइम पीरियड सेम आया है. यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप निकाला था कि अगर मैं बॉडी को जस्ट नीचे थ्रो करूँ तब क्या टाइम पीरियड आता है, और जो ऊपर थ्रो करूँ इस टाइम पीरियड में, और जस्ट ड्रॉप करूँ और इस टाइम पीरियड में, इन तीनों टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड विद दिस इलस्ट्रेशन. यहाँ पे हमने कंसेप्ट देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं किसी मूविंग बॉडी से थ्रो करता हूँ, तो दैट ऑब्जेक्ट विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ओके. सो दैट वी हैव सीन. हियर वी हैव सीन द मोशन अपॉन द इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है पहले हमने देखा. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा मोशन इन द इंक्लाइन प्लेन, जो फाइनल वेलोसिटी होती है बॉटम तक आने में, इंक्लाइन से आए या प्लेन वर्टिकल ड्रॉप करके आए, इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है, बट टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. टाइम पीरियड में कितना चेंज हो जाता है, √2h/g cosec थीटा. तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है. cosec थीटा इज एज थीटा इंक्रीजेस, cosec थीटा इंक्रीजेस. इस केस में क्या होता है, मोशन को मैंने अलॉन्ग लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की जगह किसी और लाइन से थ्रो कराया. अगर उस किसी और लाइन से थ्रो कराऊंगा तो आई हैव सीन द टाइम टेकन वैल्यू इज कमिंग इज दिस वन. तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज होगा, सेक थीटा इंक्रीज होगा, तो माई टाइम पीरियड विल इंक्रीज. टाइम पीरियड कमिंग in a line which is not the greatest slope will take the maximum, will take more time. Okay. Then we have seen two problems based on motion under the gravity. राइट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन. अभी हमारे आई थिंक 2 to 3 लेक्चर और हम लोग ट्राई टू कवर अप. अब हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है काइनेमेटिक्स में, इट इज़ रिलेटिव मोशन देखेंगे 1D में. देन वी आर गोइंग टू सी
the graphical interpretation of all the parameters, or how xt, vt, ut graph has been there, xt, as, all these graphs, how we plot these graphs, or how the graph is giving you a good intuition before solving any problem. तो ये देखेंगे हम लोग coming lectures में, और we'll try to we'll take some good problems from PYQ Irodov. We'll take some good problem and we'll try to solve those problems in the coming lectures. Okay, so that's all for today. I'll meet you up in the next lecture number 4. Okay, all right, thank you.